Thanks for your presence and time. Our Dean Academic Affairs, Professor Surinder Kumar, Registrar Professor Gulshan Taneja, Dean Colleges Professor A.S. Mann, Dean Students Welfare Professor Randeep Rana, Director IQAC Professor B. Narasimhan, all faculty deans, head of the department, director of various centers, faculty members, invited guests, friends from media, and my dear students. Dear students, I am here not to give any speech or lecture. I am here to welcome you and interact with you. First, I have few questions. Any one of you can respond. Any one of you. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, when you decided कि मैंने पीजी करना है, मास्टर डिग्री जो है वो अर्न करनी है, यानी हायर एजुकेशन आपने लेनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपकी लाइफ में, मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा। आप में से कोई भी मेरी बात को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे वन बाय वन, आपने किस आधार पे जो है ये डिसाइड किया कि यस मैंने हायर एजुकेशन लेनी है, इसके पीछे क्या सोच है? आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। कोई भी खड़ा होके अपना रिस्पॉन्स दे सकता है। यस बेटा। My name is Nidhi and I am from mathematics department. वेरी गुड। Now, there are two reasons why first of all, I want to tell you why I choose MDU as to proceed my MSc. This is the only university from which I want to continue my masters. I have never filled the form for any other university. Like वो कारण आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई आपने MDU को ही चुना है? It is well known because MDU is the top university of Haryana. Okay, आपके मुताबिक ये है कि भाई it's a known university? Yeah. Not only in Haryana, even outside. Yeah. Good. Secondly, I have completed my graduation from MDU affiliated colleges also, so I've often visited MDU University. So this is another reason कि भाई आपने इसी के affiliated college से किया and you thought good university, एक अच्छी university है and I should continue my higher education with the MDU only. Yeah. Very good beta. And the clean and green campus of MDU attracted me the most. And oh, very good. Vibes. The clean and green campus of MDU, that was an added attraction. Good. Now let's the university and you deserve clapping. Very good. Now let's come to the point why I choose to do masters. Because my father often said, until you completed your higher educations, you don't achieve that mentality, that maturity. So in spite of going into teaching field, I want to be a best human. That's why I choose to complete my higher education first. Good beta. My next question is, ये इंडक्शन प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई मुझे बताए कि वाई दिस इंडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन? वाई दिस इंडक्शन प्रोग्राम? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनी इंडक्शन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर एनरोलमेंट और द टाइम ऑफ देयर एडमिशन? कोई बताए आप में से कि इंडक्शन प्रोग्राम का पर्पस क्या है? शाबाश। Sir, in my motive, the sole purpose of induction program is assimilating the new students and making them familiar with the cultures
and the customs of the university, and making them the rich tradition of that university is carrying, and making them familiar to the legacy that university is carrying from last 55 years. Very good. A big clapping for the boy. आप में से कोई और भी रिस्पॉन्स दे सकता है इस बात को, इसमें कुछ एडिशन अगर करना चाहे कोई? यस यस बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीतू झांगड़ा है और मैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। तो सर इंडक्शन प्रोग्राम जनरली मेरे व्यू से जो है, इधर इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर सभी चीज़ें बताई जाती है कि भाई एमडीयू आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स अगर किसी का इंटरेस्ट होता है बट लैक ऑफ नॉलेज या फिर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो सबसे पहले जो है इंडक्शन में ये बताया जाता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है यूनिवर्सिटी। और किसी को कल्चरल में जाना है तो उसके लिए अलग अपॉर्चुनिटी, उसके रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं। वाईआरसी में किसी का इंटरेस्ट है, एनएसएस में किसी का इंटरेस्ट है, एनसीसी में किसी का इंटरेस्ट है। तो सर मेरे अकॉर्डिंग जो है बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम इसलिए बताया जाता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी एमडीयू प्रोवाइड करती है और हम अपने स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। She really deserve clapping. Thank you. जैसा कि इन दो स्टूडेंट्स ने बताया, मोटे तौर पे जो है इंडक्शन प्रोग्राम का पर्पज़ जो है यूनिवर्सिटी का आप सबके लिए ऑर्गेनाइज करने का, यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक्वाइंट करना, यानी यूनिवर्सिटी के अलग अलग पहलू के बारे में, अलग अलग फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताना, सो दैट यू कैन बी हेल्प्ड टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, यू कैन बी मोर कंफर्टेबल हियर। आप 2 साल, आप में से कुछ बच्चे जो है 2 साल रहेंगे, मास्टर डिग्री प्रोग्राम करेंगे। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे जो है पीएचडी प्रोग्राम भी जो है आगे परस्यू करेंगे, मे बी अनदर 3 और 4 ईयर। तो जिस जगह पे आप 2 से 5-6 साल तक, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी, तो उस जगह के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे लिए ये यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह की फैसिलिटी जो है यूनिवर्सिटी के पास हैं और क्या मैं अवेल कर सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हर यूनिवर्सिटी का, हर इंस्टीट्यूशंस का अपना कल्चर होता है, अपनी ईथोज़ होते हैं, और उस कल्चर के बारे में, उस ईथोस के बारे में, उन वैल्यूज़ के बारे में, ईच इंस्टीट्यूशन स्टैंड फॉर सम वैल्यूज़, उन मूल्यों के बारे में आपको पता चले, उस सब के बारे में बताने के लिए। इससे बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट इस इंडक्शन प्रोग्राम का पर्पज़ है टू क्रिएट ए बॉन्ड अमंग स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी एंड द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। ये बहुत बड़ा पर्पज़ होता है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम करके, ये आपकी कैरियर की फाउंडेशन ले करेगा ये प्रोग्राम जो है आपका। और जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, इंस्टीट्यूशन का नाम हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये बॉन्ड क्रिएट हो आपके बीच में, आपके और जो साथी हैं उनके बीच में, और आपके टीचर्स के बीच में। और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जब बताया जाएगा, जब इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चलेगा कि यस, जैसे एक बच्चे ने बताया पीछे कि क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट दैट क्रिएटेड ए बॉन्ड फॉर हर, मे बी द लाइब्रेरी फैसिलिटी कैन क्रिएट ए बॉन्ड फॉर मैनी स्टूडेंट्स, may the program offered by the Red Cross, NSS, NCC or the outreach center or the director youth welfare, many schemes unfold by the dean students welfare for the students. So many things combined together, they create a bond for the institutions. मैं ये समझता हूँ कि ये सब जो है, ये इनकलकेट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल कल्चर क्रिएट करने के लिए और अच्छी इंस्टीट्यूशंस का
एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे यही चीज़ होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को उस इंस्टीट्यूशंस के कल्चर, उस इंस्टीट्यूशंस के वैल्यूज़, उस इंस्टीट्यूशंस के ईथोस और उस इंस्टीट्यूशंस की बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में जो है स्टूडेंट्स को अवगत करवाए, ताकि वो बच्चे एक लार्जर, मैं ये कहूँगा, पर्पस जो है वो जो है सर्व कर पाएँ, और वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से या उन फैसिलिटीज़ के माध्यम से वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ, वो जीवन में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ, उनका जो पोटेंशियल है उसको वो ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ तो डिस्टेंस एजुकेशन से भी मैथमेटिक्स में बच्चा है, हमारे यहाँ एमए डिस्टेंस मोड्स के माध्यम से भी ऑफ़र की जाती है, बहुत से प्रोग्राम हैं। आज के दिन तो जो है हमारे यहाँ डिस्टेंस प्रोग्राम के माध्यम से अनेकों ऑनलाइन और ओडीएल मोड से काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं। बट जो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो आपको मिल रहा है, ये जो बैठ के एक दूसरे से ना केवल एक डिपार्टमेंट के बल्कि कई सारे डिपार्टमेंट के बच्चे आपस में मिलकर 2 दिन जो है एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे जो है वो अलग अलग आते हैं, कोई देहात का है, कोई गांव का है, कोई मेट्रो सिटीज़ से, दिल्ली से भी बच्चे हमारे पास काफ़ी आते हैं, कोई हरियाणा का है, कोई हरियाणा से बाहर का भी है, एक आध विदेशी बच्चा भी होगा आपके बीच में। जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं आपको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ सबसे पहले तो, कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपको इस बात पे फ़ख्र भी होना चाहिए कि आज आपकी यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा में चम्बन यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 21 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और 22 या 24 उसमें स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं, कुल मिला के चम्बन यूनिवर्सिटी हैं। यूएस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, इन चम्बन में से, जो देश की 1100 प्लस यूनिवर्सिटी, आज के दिन देश में 1100 प्लस यूनिवर्सिटी हैं देश में, चम्बन हरियाणा में है। और इन 1100 यूनिवर्सिटी की हर साल जो है पहले 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी होती है, बाकी की नहीं जारी होती। फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट हर साल जारी होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी 1100 में से, 1100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो देश की पहली 100 यूनिवर्सिटी में स्टैंड करती है। I must congratulate you that yours MDU is the only university which is maintaining its position since last 5 years among top 100 university of the country. तो ये आपके लिए फ़ख्र की बात है और आपके लिए बधाई की, मैं ये समझता हूँ कि बधाई की बात है। अगर मैं उसमें कुछ चीज़ों को काउंट करवाऊँ जो कि इन 2 दिन में आपको पता भी चलेगा। क्लीन एंड ग्रीन यूनिवर्सिटी के तौर पे जो है पहले नंबर पे देश की सभी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में से 2018-19 में आपकी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 पे आंका गया, नंबर 1 पे देश में। और 18-19 के बाद जो है उस कंपटीशन से 5 साल के लिए कम से कम बाहर रख दिया जाता है, और उसके बाद 2020 में आपको ग्रीन मेंटर का अवार्ड के नाउ यू हैव टू मेंटर अदर इंस्टीट्यूशंस for the purpose of how they can keep their campuses clean and green. So your university is attained the stature or the title of a mentor university for making other institutions clean and green and guiding other university for this purpose. I think it's another matter of pride for you. दोस्तों, मैंने 5 साल यूजीसी के साथ काम किया, 2012 से 17। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूँ, और मैं इसलिए करता हूँ कि यूजीसी के साथ काम करते हुए आदमी को काफ़ी बार मौका मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। मैं 100-125 कम से कम 100-125 यूनिवर्सिटी, देश की यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट भी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। आई एम येट टू फाइंड
एनी अदर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी यूनिवर्सिटी से बेहतर हो। एक आध यूनिवर्सिटी साइज़ में भी बड़ी हैं, लेकिन जितनी मेंटेन्ड, जितना ग्रीन एंड क्लीन कवर आपकी यूनिवर्सिटी का है, जो फैसिलिटी आपकी यूनिवर्सिटी में है, बहुत से ऐसे चीज़ें मैं जो आपको गिनवाऊंगा। मेरा दावा है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वो आज देश में शायद ही किसी यूनिवर्सिटी की इतनी रिच लाइब्रेरी हो, और शायद ही इतनी किसी यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी, किसी लाइब्रेरी की कैपेसिटी हो। लगभग 2000 बच्चे जो हैं आज 24/7 खुली रहती है वो जो सेक्शन जो हैं, और शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में 2000 बच्चों की जो है बैठने की कैपेसिटी, किसी यूनिवर्सिटी में 24 घंटे, वैसे तो डे टाइम में तो करीब 3500 बच्चों को बैठने के लिए हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन 2000 की कैपेसिटी तो लगभग ऐसी है कि जो 24 घंटे अगर आप उसको फैसिलिटी को अवेल करना चाहें तो वो है। देश की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इस तरह की फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ जाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि रात को भी 1000-1200 बच्चे जो है लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। दिन में नंबर और भी बड़ा है। जब ये लाइब्रेरी की एक्सपेंशन चल रही थी, कुछ लड़कियाँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा है कि हमें रात को लाइब्रेरी में जो है हमें भी अलाउ किया जाए। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन मुझे ये लगा कि एक लड़की ने बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दिया कि हमें 2-2, 3-3 को एक कमरा मिला हुआ है, एक सोना चाहती है, एक पढ़ना चाहती है। तुरंत तो हमने उस पर समाधान ये निकाला कि भाई हर हॉस्टल में एक रीडिंग हॉल यानी रीडिंग रूम इस तरह का हो, जिसमें इकट्ठे बैठ के भी अगर मान लिया बच्चियाँ पढ़ना चाहें तो उनके लिए फैसिलिटी हमने क्रिएट की। आपके हर हॉस्टल में है, अगर कोई इस तरह की कोई दिक्कत है तो बता भी दें, चीफ वार्डन इसके बारे में काफ़ी संजीदा है। लेकिन साथ साथ में एक इन्वायरमेंट होता है पढ़ने के, जैसे लाइब्रेरी का एक इन्वायरमेंट है। उसी दिन लाइब्रेरियन के साथ, चीफ वार्डन के साथ मिलकर हमने ये डिसाइड किया कि गर्ल्स हॉस्टल में भी एक जो है मल्टीपर्पज़ और एक 3 स्टोरी बिल्डिंग बने, कम से कम 1000 गर्ल्स के लिए वो कैपेसिटी हो। 2-2,500 बच्चियाँ वहाँ रहती हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिश है कि अगले 18 महीने में विदिन 2 ईयर एटलीस्ट जो है वो हॉल जो है, और मुझे नहीं लगता कि देश की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इस तरह से का जो है हॉल जो है रीडिंग हॉल, जिसमें बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न जो फैसिलिटी बच्चों के लिए, जिसमें किसी तरह की रिसोर्सेज आपने एक्सेस करने हैं, तो 1000 गर्ल्स के लिए जो है जिसमें काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी आपके गर्ल्स हॉस्टल का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ जिस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के पास इस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी होंगी जो आपकी यूनिवर्सिटी के पास हैं। मैं लैब्स की बात करूं तो खासकर जैसे अगर मैं साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करूं, चाहे वो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिकल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं या फार्मेसी के सब्जेक्ट हैं, वी हैव बेस्ट ऑफ लैब फैसिलिटी। और जिसमें रात को भी काम करने के लिए मतलब जो है कुछ टीचर्स मैंने नोट किया है देर रात तक भी काम करते हैं। पीएचडी के स्कॉलर्स देर तक भी काम करते हैं। मैंने सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें अगर और रात को कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, टी वेंडिंग मशीन है, ये आज के दिन कोई लग्जरी के आइटम नहीं हैं। ये फैसिलिटेट करने के लिए अगर इस तरह की कोई चीज़ें अगर टीचर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को अगर आवश्यकता होगी, हम उसको और ऐड करेंगे चीज़ों को बजाय। मेरा ये मानना है कि ज्ञान जो है, नॉलेज, वो ध्यान और सम्मान के बिना उसको अर्जित नहीं किया जा सकता। यानी आप अगर फोकस तरीके से काम नहीं करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बहुत ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। और सम्मान की जो बात मैंने कही, आप कभी देख लेना कि अगर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके प्रति आपके मन में सम्मान नहीं है, आपका उस पर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, आपका उसके साथ बॉन्ड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप उससे कुछ ज़्यादा हासिल कर पाएंगे।
एकलव्य ने भी जो है, जब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, ये इतिहास का प्रसंग जो है आपने पढ़ा होगा, हमारी माइथोलॉजी का हिस्सा है, कि उन्होंने मना कर दिया था, उसके बाद भी उनका स्टैचू बना के, यानी उनकी आस्था थी, उसमें विश्वास था, सम्मान था, ट्रस्ट था कि मैंने इन्हीं से सीखना है। और वो कितने बड़े धनुर्धारी बने, ये हम सभी जानते हैं। ठीक मेरा ऐसा ही मानना है कि यदि आपकी अपने टीचर्स के प्रति सम्मान नहीं है आपके मन में, यदि, और मैं टीचर से भी ये बात कहूँगा कि अगर आप बच्चों के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाए हैं, मुझे नहीं लगता आप कितना ही जोर लगा लें, आप बच्चे को कुछ ज़्यादा सिखा पाएंगे। सो इट्स ए टू वे। और इसलिए मैंने ये भी कहा था कि सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम हर डिपार्टमेंट से 2 टीचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन्स सारे के सारे हैं। मुझे खुशी है इस बात के लिए। ये कोई एक तरफा संवाद नहीं है, इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन। हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे और चीज़ों के समाधान नहीं ढूंढेंगे और समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अक्सर जो है प्रॉब्लम का तो हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन समाधान का हिस्सा नहीं बनते। मैं समझता हूँ कि अगर ये एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाए, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, कि आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे नहीं लगता कि जो आज लेवल है आपकी यूनिवर्सिटी का, उससे अगर नेक्स्ट लेवल की अगर हम सोचते हैं, ईच वन ऑफ अस हैज़ टू थिंक कि मुझे जो है मेरे डिपार्टमेंट में या मैंने अपने जीवन में समस्या का हिस्सा नहीं बनना है, समाधान का हिस्सा बनना है। तो चीज़ें जो है बेहतर होती चली जाएंगी। मैं कुछ चीज़ें इसी तरह से की चीज़ें जो है आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, और वो इसलिए भी साझा करना चाहूँगा, मैं वो कुछ चीज़ें जो है मेरे अपने अनुभव से हैं, तजुर्बे से हैं। और एक बात और साफ करना चाहूँगा कि मैं जो है, जो आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आई एम वन ऑफ यू। मेरी जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कोई आपसे डिफरेंट नहीं है। साधारण सिंपल परिवार से, गांव से, स्कूल एजुकेशन जिसके गांव की रही है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से मेरे से बेहतर स्कूलों में पढ़े हैं, मेरे से बेहतर कॉलेज में पढ़े हुए हैं आप। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा हरियाणा में जो है, इवन मैं शहर की भी बात करूँ, मोर और लेस जो है एक विलेज की एक्सटेंशन जो है हमारे शहर हैं। तो हम सब सारे उसी तरह के बैकग्राउंड से हैं। मेरा जो अनुभव है वो लगभग आप उसको अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उससे अगर आपको लगे कुछ सीखने की चीज़ें हैं, आपके अगर जीवन में कुछ काम आने वाली चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि बतौर टीचर, बतौर शिक्षक, मेरा जो काम है, मेरा जो रोल है, या बतौर वाइस चांसलर मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं ये मानूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा मैं उसका, अगर कुछ बच्चों के जीवन में वो चीज़ें काम आती हैं और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, और वो अगर जीवन में कहीं सफलता की सीढ़ियों पे अगर वो चढ़ पाते हैं, पहुंच पाते हैं, तो मैं ये समझूंगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मुझे जो रोल मिला था, मैंने वो रोल जो है वो जो है ईमानदारी से निभाने की मैंने उसको कोशिश की है। आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में काम पढ़ने के लिए मौका मिला है। ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको जीवन में शायद दोबारा नहीं मिलेगी। एक तो मैं इसमें ये कहूँगा कि आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट उस पर ध्यान दें। जीवन में जो सफल लोग होते हैं, या कई बार ये कहते हैं कि भाई जीवन में उसको सफलता नहीं मिल पाई, या अपने आप को ये मान लेते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल पाई। सफल और असफल लोगों की अगर मान लिया कोई श्रेणी की बात करें, हालांकि मेरा ये मानना है कि असफल कोई नहीं होता, ये एटीट्यूड की बात है।
लेकिन एक बात तो उनके पास कॉमन थी कि 24 घंटे का समय जो आदमी सफल हुआ है उसके पास भी था, और अगर मान लिया किन्हीं कारणों से अपने आप को असफल मान रहा है कि वो जीवन में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाया है कोई, उसके पास भी वही 24 घंटे थे। और सफल इंसान जो अपने आप को जो सफलता की ऊंचाइयों पे जो चढ़ा है उसके पास भी वही 24 घंटे थे। लेकिन जो जिसको हम सफल कहते हैं उसके पास उसने क्या किया, उसने अपना टाइम मैनेजमेंट किया। तो बेहतर टाइम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे कि पढ़ाई के वक्त पढ़ना है, खेलने के वक्त खेलना है, और रिक्रिएशन के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, उसके लिए भी आपके यहाँ फैसिलिटी जो है हम क्रिएट की हुई हैं। और अगर उसमें एडिशन की बात करेंगे, इवन हमने तो इंडक्शन प्रोग्राम में भी जो है उसका पार्ट बाद दोपहर का कुछ कल्चरल इवेंट्स आपके लिए रखे हुए हैं। और ये यूनिवर्सिटी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस ऑडिटोरियम के माध्यम से, दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म जो है, मैं ये कहूँगा कि एमडीयू का डायरेक्टर यूथ वेलफेयर का जो ऑफिस है वो बहुत ही एक मजबूत आपको एक जो है पायदान देता है कि जिसमें आप ना केवल अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं बल्कि आप एक वैल्यू एडिशन जो है आप अपने अंदर जो है वो ला सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटी हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, आउटरीच एक्टिविटी हैं। आने वाले दिनों में आउटरीच एक्टिविटी का जो है मैं आपको बताऊं कि अगर आप विदेशों में कहीं अगर एडमिशन लेने की बात करेंगे और अगले 3 से 5 साल में हमारे यहाँ भी जो है इस तरह की चीज़ों को तवज्जो जो है मिलेगी। और आपके जो एडमिशन्स हैं वो सिर्फ ना केवल आपकी एकेडमिक अटेनमेंट यानी मेरिट के बेस पे मिलेंगे, बल्कि आपकी ऑल राउंड ग्रोथ जो है, ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का कितना मादा है। आज के दिन कंपनियां भी जो हैं वो ये जो स्कोर है इस पे ध्यान नहीं देती, बल्कि वो ये देखती हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या इनोवेशन है इसमें, ये चीज़ें देखते हैं। क्या इसके अंदर किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसके अंदर क्या इसके अंदर लाइफ स्किल्स हैं। ये अगर मान लिया इस पर कोई प्रेशर आए तो उन प्रेशर्स को कैसे ये मतलब जो है वार्ड ऑफ कर सकता है, कैसे झेल सकता है। और इन सारी चीज़ों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों की इस तरह की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो है हर चीज़ जो है आपके टीचर्स जो हैं ये सोचते रहते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने एस्टेब्लिश करनी हैं, चाहे वो DYW के माध्यम से हैं, चाहे आउटरीच एक्टिविटी के माध्यम से हैं, चाहे सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के लिए है। ब्रिटिश काउंसिल के साथ करार किया हुआ है, यूनेस्को के साथ जो है MOU साइन किया हुआ है कि हमने अपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है। महिंद्रा प्राइड की तरफ से आजकल हर डिपार्टमेंट में जो है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में जो है अभी कल से शायद 4 डिपार्टमेंट्स में मतलब जो है कम्युनिकेशन स्किल्स और जो है एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए जो है कैसे आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो है इंटरव्यू टेक्निक्स क्या हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, कैसे ड्रेसअप होना है। बहुत सी ऐसी जो माइन्यूट जो चीज़ें हैं उस सब के लिए आपको जो है हमारा प्रयास ये है कि आप जो है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब भी यहाँ से निकलें तो आप एक ऐसे इंसान के तौर पे निकलें। अगर आप समाज में या किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो टीचिंग में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, लीगल प्रोफेशन में जाएं या मैनेजमेंट में जाएं, जहाँ भी जाएं अलग से आपको पहचाना जाए आपकी खासियत को। यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स कैपेसिटी बिल्डिंग की मैं बात करूं, MDU का अच्छा खासा इस बात पे ध्यान है कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाए। और एक कंसोर्शियम जो है 4 सेंटर्स को मिला के एक कंसोर्शियम बनाया है जिसमें यूथ स्किल डेवलपमेंट है जो DYW की ही स्कीम है या DSW की स्कीम है, जिसमें SSB के लिए ट्रेनिंग दी जाती है हमारे बच्चों को। एंड
आई टेक प्राइड इन दिस फैक्ट कि अब तक जो है 450 से भी ज़्यादा जो है बच्चे हमारे जो है वो कमीशन्ड ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑफिसर्स के तौर पे जो है वो ब्रिगेडियर साहब का स्वागत है। हमारे ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर हरबीर जो है हमारे बीच में हैं। एनसीसी के अधिकारी, एनसीसी हमारे इस कैंपस का एक अभिन्न अंग है। तो बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था कि यूथ स्किल डेवलपमेंट, जिसको आजकल ब्रिगेडियर हरबीर जी ही जिसकी कमान संभाले हुए हैं कि बच्चों को जो है और बेहतर ट्रेनिंग हम कैसे दे सकते हैं ताकि वो डिफेंस फोर्सेस में जो है उनको ज्वाइन कर सकें। 450 से भी ज़्यादा बच्चे जो है अब तक जो है पिछले 10 साल में, और उस सेंटर की जो एवरेज है, बाकी जो काफ़ी पैसे लेके जो जिस तरह की ट्रेनिंग जो है 50-50 1-1 लाख रुपया लेते हैं, और हमारे यहाँ तो नॉमिनल मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये की फ़ीस के साथ जो है वो जो है, जबकि खर्चा एक बच्चे पे 10-15 हज़ार रुपया खर्चा एक बच्चे पे आता है। तो इस तरह की फैसिलिटी 60-65 गर्ल्स को जो है कमीशन्ड अफसर्स के तौर पे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत एक बड़ी उपलब्धि मैं ये कहूँगा कि बोले जो है उस सेंटर की है। उसके साथ में एक कॉम्पिटिटिव सेंटर है हमारे पास। नेटो जेआरएफ की ट्रेनिंग तो मतलब जो है उसकी कोचिंग तो मिलती है, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मतलब जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो है काम कर रहा है। कॉम्पिटिटिव सेंटर जो है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर जो है। एक सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट का सेंटर है हमारे पास। उस सेंटर के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग जो ये है, महिंद्रा प्राइड के साथ जो आजकल जो एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए जो वर्कशॉप्स करवाई जा रही है, एक वर्कशॉप की वो सेंटर ही करवा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो एवरेज अब तक जो है यूनिवर्सिटी के प्रयासों से बच्चे की डिग्री पूरी होने से पहले जो कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां बुलाई जाती हैं, 700 से 800 बच्चे पूरे साल में जो है इस सेंटर के माध्यम से एम्प्लॉयबल होते थे, यानी उनको प्लेसमेंट मिलती थी। लेकिन इस साल का मैं आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो 1,500 से भी पार किए हुए है इस बार, यानी जस्ट डबल है। और एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब हमारे बच्चे जो है 9-10 लाख से नीचे के पैकेज को तो मना कर देते हैं कि नहीं, ये हमारा लेवल नहीं है। ये एक मान सम्मान की और एक हमारी उपलब्धि की बात है कि 8 लाख के नीचे के पैकेज को तो हमारे बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं, ये हमारा लेवल नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आपका लेवल जो है आने वाले दिनों में कम से कम 1 लाख रुपये महीने की सैलरी से तो हमारा नीचे लेवल होना ही नहीं चाहिए, और उसके लिए काम करना है हमने। लेकिन उसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है, और उसी के लिए इंडक्शन प्रोग्राम जो है, इस तरह के और भी प्रोग्राम जो है आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे। चौथा एक सेंटर जो है जिसका कंसोर्शियम यानी जिसका एक समूह हमने फिर बनाया, इकट्ठा किया। चौथा है सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स के लिए, जिसका मैंने कहा है कि ब्रिटिश काउंसिल, उस सेंटर ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ जो है इकरार किया। ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम है 45 घंटे का सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए। अगर आप इंडिपेंडेंट तौर पे अपने आप को एमडीयू का स्टूडेंट्स के नाते नहीं, वैसे अगर इंडिपेंडेंट भी जो है आप उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 रुपया जो है 45 घंटे की उसकी फ़ीस है। लेकिन हमारे साथ जो एमओयू के बाद उन्होंने वो प्रोग्राम जो है 9,000 रुपये उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, और उसका भी जो है 4,500 रुपये यूनिवर्सिटी देती है। 4,500 बच्चे पे छोड़ा है हमने। 4,500 में 20,000 का जो प्रोग्राम है वो 4,500 में आप कर सकते हैं। और 45 घंटे का प्रोग्राम जिन बच्चों ने लास्ट ईयर जो अटेंड किया है, 45 घंटे करने के बाद जो है आपको अलग फ़र्क महसूस आएगा कि भाई हाँ, मैंने एक 45 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद दीज आर दी कैपेसिटीज़ विच आई हैव डेवलप इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। इसी तरह से यूनेस्को के साथ जो है एमओयू हुआ था, और उसमें पिछली बार मुझे बताया गया कि 1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने जो है उसका सर्टिफिकेशन हुआ है। उस ऑनलाइन 45 घंटे का ऑनलाइन प्रोग्राम है। 500 रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ हैं हमारा। अगर कोई बच्चा अगर उसमें रजिस्टर करवाएगा तो सिर्फ 500 रुपया वो उसका चार्ज करेंगे। 45 घंटे का प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट बाकायदा आपको मिलेगा, और ये जो सर्टिफिकेट हैं ये आपके काम आएंगे। काम एक सेंस में तो ये कि आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होगी, और कहीं अगर बाहर एडमिशन लेते हैं तो इसी तरह से हमारी प्लानिंग है
कि आउटरीच एक्टिविटी का भी हम 2 क्रेडिट का जो है एक प्रोग्राम जो है वो, कि हर बच्चा किसी न किसी कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करे। और ये मान के चलिए, माननीय जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी इस बात पे फोकस है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए उनको जो है इस बात के लिए इनकरेज किया जाए, ताकि वो जीवन में, क्योंकि आप एजुकेशन लेके कहाँ जाएंगे, सोसाइटी में तो जाएंगे ना। हम बचपन से सुनते हैं कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, वो क्या है? आप समाज में एजुकेशन का आफ्टर ऑल पर्पज़ क्या है? एजुकेशन का पर्पज़ यही है कि आप नॉलेज गेन करें और उस नॉलेज की एप्लीकेशन जो है अपने फ़ायदे के लिए, यानी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, अपने परिवार के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए उस नॉलेज को का इस्तेमाल करें। और ये पढ़ते वक्त अगर मान लिया आपका कोई किसी तरह का इंटरेस्ट ये कम्युनिटी सर्विसेज के लिए डेवलप नहीं होता, तो ये ओरिएंटेशन जो है कम्युनिटी सर्विसेज की ओरिएंटेशन, तो जो है मैं ये कहता हूँ कि जब कोई आदत होती है, हैबिट, वो आदत ही तो धीरे धीरे आपकी एक्शंस को डिसाइड करेगी कि आप जो कल निर्णय लेंगे उन आदतों के बेस पे तो ही निर्णय लेंगे। अगर वो पहले से इसी समय अगर आपकी ओरिएंटेशन जो है कम्युनिटी सर्विसेज की अगर हो जाएगी, तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग जो है आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन का ये मूल पर्पज़ तो यही है कि आपको अपनी पोटेंशियल का एहसास हो, उसको आप उभार पाएँ और उसके साथ जो है अपना और अपने आसपास का और समाज का जो है आप जो है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये आउटरीच एक्टिविटी पे भी हमारा जो है विशेष फोकस रहेगा। और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और डायरेक्टर यूथ वेलफेयर से कई बातचीत हमारी कई दौर की हो चुकी हैं कि हमारे यहाँ क्लब, सोसाइटी, हर बच्चा किसी न किसी क्लब और सोसाइटी की मेंबरशिप उसके पास हो, और बच्चे ही मिलके, जैसे जो है डॉक्टर जगबीर राठी ने बात रखी थी कि बच्चे ही मिलके उन क्लब की एक्टिविटी को चलाएं, उन सोसाइटीज़ की एक्टिविटी को चलाएं और वो सीखें। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक स्कीम जो है, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि और कोई यूनिवर्सिटी उस तरह की, एक अर्न वाइल लर्न गवर्नमेंट की स्कीम ज़रूर होती थी कि बच्चे पढ़ते वक्त कुछ ना कुछ उनको छोटा मोटा जो है ऑनरेरियम दिया जाए, वो काम कर रहे हो। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी MDU जो स्कीम लेके आई है वो है स्किल इन्हेंसमेंट इंसेंटिव स्कीम्स, कि आपके अंदर कोई स्किल अगर है, वो स्किल, मान लिया किसी बच्चे के अंदर एक हुनर है इवेंट मैनेजमेंट का है, आज जैसे ये इतना बड़ा इवेंट है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें लगे हुए होंगे, हर रोज़ाना कोई न कोई सेमिनार होता रहता है। आप देखते हैं कि आजकल इस तरह की कंपनियां जो है वो आगे आई हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां आ गई हैं, नाना प्रकार के जो है कैरियर, फिजिक्स में MSc है और इवेंट मैनेजमेंट में जो है वो काम कर रहा है। ये जो डिसिप्लिन की नॉलेज है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले दिनों एक जो है ऐसे ही किसी से बातचीत करते हुए मैंने भी वो थ्रेड जो है पिकअप किया था, और हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर जो है उस बात को काफ़ी उसकी चर्चा करते हैं। आज के दिन जो है टी शेप नॉलेज जो है वो आपकी चाहिए। टी शेप नॉलेज, टी ये होती है ना, टी अल्फ़ाबेट जो होता है, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो उस सब्जेक्ट की आपके पास, और थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है कुछ और चीज़ों की आपके पास भी होनी चाहिए। यानी ऊपर की नॉलेज जो है, यानी मल्टीटास्कर, जो आज का जो समय है, बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त का बेटा जो है जर्मनी में गया, भारत नाम है उसका, उसने अपना ब्लॉग, बाद में उसने पॉडकास्ट वगैरह उस तरह के भी आजकल बच्चों में मेरे जो है
वो एमटेक करने के लिए वहाँ पे गया। पहले तो जर्मनी सीखी उसने। जर्मन में ये बताया जाता है कि जर्मनी अगर आप सीख लो, अगर जर्मन में अगर हायर एजुकेशन ले रहे हो तो फ्री है। पहले तो उस बच्चे ने सबसे पहला तो प्रयास ये किया कि मैं जर्मन सीखूं और मैं जो है अपना माँ बाप का कोई खर्चा ना करूं और फ्री एजुकेशन लूं। एमटेक किया। एमटेक करने के बाद आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है और एक आइलैंड पे घर भी खरीद लिया है। और मतलब जो है उनके फादर बताते हैं कि मेरे पास तो मैं प्रोफेसर हूँ, सारी उम्र इतना नहीं मैं जोड़ पाया, और ये बच्चे ने 4-5 साल में ही पैसा जो है, और कई देशों की यात्रा कर चुका है। ये तभी संभव है जब आपके आसपास एक इस तरह का एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करे आपको कि जिसमें आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको उभारा जा सके, आप अपने पंख फैला के उड़ पाएँ और अपने सपनों को साकार कर पाएँ। ये एमडीयू का प्रयास जो है, एमडीयू के इन टीचर्स का प्रयास आपके लिए ये रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो लें ही, लेकिन सब्जेक्ट के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। आप लाइफ स्किल्स की चीज़ें भी, अगर मान लिया आप पे कोई प्रेशर आए तो सुसाइड की तरफ ना भागें आप, बल्कि जीवन को फेस करें। उस जीवन को फेस करने की हिम्मत आपके अंदर मतलब जो है वो कैसे डेवलप हो। वो अगर आप कम्युनिटी सर्विस की तरफ अगर मुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, टू योर टीचर्स हु टॉट यू, और जिनकी बदौलत जो है आज आप एक इस अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए हैं। हायर एजुकेशन में कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में अपने आप को इनरोल कर पाते हैं? अगर मैं अपने देश के आंकड़े की मैं बात करूं, इट इज़ लेस देन 30%। तो आप तो उन चुनिंदा जो है 3 में से 1 लोग जो हैं, या 3-4 में से 1 जो है जिनको ये मौका मिला है कि वो हायर एजुकेशन लें। फॉर दैट यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। आई नो आप में से बहुत से मतलब माँ बाप ऐसे हैं, बहुत से बच्चों के, जो बहुत मुश्किल से ये उन्होंने जुगत किया, नहीं फिर भी उन्होंने मन बनाया कि नहीं, बच्चे को हॉस्टल में डालना है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है। एक्नॉलेज कीजिए, ग्रेटफुल होने चाहिए। और जिन टीचर्स ने, जिन दोस्तों ने, जिस रिश्तेदारों ने आपकी मदद की है और आप यहाँ तक आए हैं, और आने वाले दिनों में जो ये टीचर जो हैं आपको आगे और तरासेंगे, यू शुड बी ग्रेटफुल, क्रिएट ए बॉन्ड। और एक और जो मैं आखिरी 1-2 चीज़ें जो मैं आज के इस वक्तव्य के माध्यम से जो संदेश देना चाहूँगा, जो साझा करना चाहूँगा, आपके आसपास में अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। नेगेटिविटी जो है दैट ब्रीड्स नेगेटिविटी। समय की बर्बादी तो होती है, लेकिन एटीट्यूड भी खराब रहता है। और ग्रोथ जो है वो पॉजिटिविटी में होती है। ग्रोथ जो है, पीस ऑफ माइंड अगर आपकी नहीं है तो आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और पीस ऑफ माइंड का मैं एक ही मंत्र आपको देता हूँ, अगर आप कर पाएँ, मैंने जीवन में थोड़ा प्रयास किया है और उसके सुखद परिणाम भी रहे हैं। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ एप्रिसिएशन डेवलप कर लें, आप दूसरे के काम को सराहने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर अपना कोई साथी है, कोई फ्रेंड है, अपना कोई टीचर है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, जो भी आपके संपर्क में है, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, आप कभी करके देख लें। अगर टीचर कोई अच्छी क्लास लेके गया है, अच्छा पढ़ा के गया है आपको, और आपको अच्छे से समझ में आया है, निकलते हुए सिर्फ इतना ही बोलने की ज़रूरत है उस दिन या उससे अगले दिन कि सर आपने कल जो पढ़ा बड़ा अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छा। आप देखना कि वो टीचर जो है आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा और एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी शुरू कर देगा। आप अटेंशन जो है आपके ऊपर उसका फोकस होगा।
एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही किसी दोस्त को है, अगर दोस्त के अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे, आप अपने भाई बहन को देख लीजिए, अगर आपसे छोटा है चाहे बड़ा है, आप अपने माँ बाप अगर आपके लिए, या वैसे भी खेती बाड़ी करता है तो अगर मान लिया कोई अच्छी खेती की है, अच्छी फसल है, खेत में जाते हैं, हम में से बहुत ही कम ऐसे होंगे कि अच्छी फसल देख के कभी माँ बाप को इस बात का क्रेडिट देते होंगे कि वाह इस बार तो बहुत अच्छी फसल है, आपने बहुत अच्छा काम किया, कभी जानने की कोशिश की हो। लेकिन जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा तो आप देखना अपने आसपास जो है एक पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। दुनिया में 90% प्रॉब्लम जो हैं वो हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं होता। हाँ, 7-8% जो है वो दूसरों की क्रिएट की हुई होती हैं, और वो जो 7-8% हैं ये सेंस ऑफ एप्रिशिएशन डेवलप कर लेंगे तो 1-2% पे ले आएंगे आप उसको। हाँ, 1% जो है नेचुरल कैलामिटी जो है, अभी मोरक्को में भूकंप आया, किसी का कोई कसूर नहीं था, हमारे यहाँ भी फ्लड आई, लैंडस्लाइडिंग हुई, हार्डली 1% समस्याएं जो हैं वो जो है गॉड गिवन या नेचुरल कैलामिटी की वजह से होती हैं। 90% कभी लिस्ट बना के अगर बैठोगे कागज़ पेन खोल के, 90% जो है आप उसके आगे पाएंगे कि ये तो मेरी खुद की क्रिएट की हुई है। 7-8% जो है अपने आसपास के लोगों की क्रिएट की हुई है, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, सेंस ऑफ एप्रिशिएशन से। हो सकता है कि आपको लगे कि पता नहीं वाइस चांसलर साहब जो है वो उपदेश देने जुड़ गए हैं और जैसे कथा लोग कहते हैं उस तरह के, लेकिन ये जीवन में काम आने वाली बातें हैं। मैं अपने अनुभव से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जब भी ये कोशिश की है या दूसरों के काम को अप्रिशिएट करने की कोशिश की, उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है मुझे ये, और वो दायरा बढ़ता चला गया। और आज ये देखिए ना, इतने सारे लोग जो है मेरे साथ खड़े हैं। मुझे पता है कि कुछ समय पहले जो है यहाँ बहुत थोड़े लोग दिखाई पड़ते थे, मैंने तो किसी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी इस बात के लिए कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथियों को भी यह बात समझ में आई कि नहीं, हमारे बच्चों के लिए है और मेरी भी जिम्मेवारी बनती है इस बात के लिए, एंड आई शुड बी देयर। ऐसे ही मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ। और एक लास्ट बात आपको और कहूँगा, आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है। दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो हताशा भी हाथ लगेगी, निराशा भी हाथ लगेगी, जेलसी भी होगी। खुद से कंपटीशन करेंगे, क्योंकि खुद से आदमी जेलसी नहीं करता। और खुद से कंपटीशन कैसे करें? जो भी आपने जीवन में गोल निर्धारित किया है कि मैंने जीवन में ये करना है, उसकी प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बनाएं, रोज़ाना उस पर काम करें, और 2 मिनट ज़रूर दिन में या शाम को, बेहतर है शाम को सोते हुए ये सोचें कि जो मैंने जीवन में सोचा है करने के लिए और उस की दिशा में मैंने जो प्लानिंग अपनी की है, एक्शन प्लान बनाई है, आज मैंने क्या किया है उसके लिए। कोई बात नहीं, हो सकता है 10-15 दिन आपको निराशा हाथ लगे, थोड़ी कुलबलाहट भी हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ जो मैंने सोचा है। आज भी मेरा वैसे ही दिन चला गया, लेकिन इस बात को छोड़े नहीं, इस बात को छोड़े नहीं, रोज़ाना करना है। डायरी लगा पाएँ इस बात की कि आज मैंने क्या किया है, और अच्छी बात है। नहीं लगा पाएँ तो सिर्फ सोच के ये दिन में ज़रूर याद करें कि आज मेरे कौन से ऐसे कदम पड़े हैं जो मेरे अपने गोल, जो मैंने सोचा है मैंने ये करना है जीवन में, उसकी तरफ बढ़े हैं। 10-15 दिन के अंदर ही आपको जो है आपकी ये रोज़ाना की एक्सरसाइज जो है आपको एक दिशा देगी, डायरेक्शन देगी, और आप धीरे धीरे काम करने लग जाएंगे, उस पे समय देना शुरू कर देंगे, अपने मिशन पे, अपने गोल पे।
और 3 महीने के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि ये टाइम टेबल बना लें, 3 महीने के अंदर आप खुद भी अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सारे के सारे जो है वो ये देखेंगे कि देयर इज़ ए चेंज फॉर पॉजिटिव, चेंज फॉर कंस्ट्रक्टिव। और 2 साल जो मैं आपके जो आप यहाँ लगाएंगे, या इससे लंबा समय जो है आप पीएचडी के लिए या और हायर एजुकेशन के लिए लगाएंगे या कहीं भी लगाएंगे, 2-3 साल के अंदर जो आप करना चाहते हैं वो सफलता आपको 100% मिलेगी। मेरे से अगर कोई पर्ची पे साइन करवा के इस बात के लिए और अपनी जेब में डालना चाहे, संभाल के रखना चाहे, तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरे पास आ जाए, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये हासिल करना है, वो आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आसान काम और सफलता का मंत्र और क्या हो सकता है। हाँ, यस, मैंने जीवन में ऐसा किया और आज भी मैं रोज़ाना सोचता हूँ कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में जो मुझे जो काम है, बच्चों के लिए जो मुझे करना है, वो मैंने आज क्या किया, और उसी का रिज़ल्ट है कि एक पॉजिटिविटी जो है मेरे आसपास जो है वो मुझे आज नज़र आती है। अगर आप करेंगे तो आपको भी जो है एक पॉजिटिविटी नज़र आएगी और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सिंपल बातें हैं, और हो सकता है आपको ये भी लगे कि भाई ऐसा अपने भाषण में, उद्बोधन में ऐसा वाइस चांसलर ने कुछ नहीं कहा, ये तो हम जानते ही हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट जो बच्चा होता है कि वो उसको इतनी समझ में आ जाती है, और ये बातें बहुत लोगों ने उनको बताई होंगी। मेरा मकसद सिर्फ उन पे आपका ध्यान आकर्षित करने का था। एक बड़े के नाते जो मेरा फ़र्ज़ है एक शिक्षक के नाते, वो बातें आपके सामने रखी है। और एक लास्ट की चीज़ और मैं आपके सामने रखूँगा। ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी इंस्टीट्यूशन है, आपके लिए है। जैसा डॉक्टर जगबीर ने कहा, मेरा वजूद, इन शिक्षकों का वजूद, इस संस्था का वजूद अगर उसके आधार में है तो वो आप हैं। अगर आप नहीं हैं तो ये खाली दीवारें जो हैं ये जो है काटने को आएंगी। और ये कोविड के दौरान लोगों ने देख भी लिया था, आपके बिना कुछ नहीं था यहाँ। वो बात अलग है कि हमारा संपर्क आपका ऑनलाइन या जो है उस तरह से रहा, लेकिन इमेजिन अगर ये हॉल जो है आपसे भरा हुआ है तो कितनी चहचहाट है, कितनी इसमें रौनक है, कितना जीवन है। और अगर अकेले ये बंद दीवारों के बीच में अकेला घुस के देखें आप इसमें, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये अच्छा लग रहा है वो इसलिए है कि आप यहाँ पे हैं। वो हरियाणवी में तो कहावत भी है, भाई मनसा की माया हुआ अगर है, माया तो है वो मनसों के साथ ही, आदमियों के साथ ही है। ये यूनिवर्सिटी आपकी है, इसकी जो है ऑनरशिप, उसको ऑन करें। जब तक आपके दिल में ये नहीं होगा ये मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी यूनिवर्सिटी है, तब तक जो है बहुत कुछ जो है बदलाव अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। यानी मैं वहीं बात को लेके आ रहा हूँ कि आप समाधान का हिस्सा बनेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी में अगर मान लिया कोई इशू है तो आई हैव टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इसकी ऑनरशिप को अपने हाथों में लेंगे, अपना समझेंगे, और इन टीचर्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आपका बॉन्ड होगा तो ये बहुत कुछ देगी आपको, बहुत कुछ लेके जाएंगे आप यहाँ से। हर प्लेटफॉर्म को मैं जो है उसको आप उसमें हिस्सेदारी करें जितना संभव हो पाए। यानी कोई ना कोई एक्टिविटी क्लासरूम टीचिंग से बियॉन्ड भी किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लें, अपने आप को तरासें,
यानी अपनी हार्ड स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ में सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। लाइफ स्किल्स जहाँ से सीख सकें, यानी ग्रुप में, और लाइफ स्किल्स के लिए कोई क्लासरूम नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ बैठने से, एक्सपोजर से ही वो चीज़ें आएंगी। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको ये बात, मैं जब एमए में एडमिशन के लिए गया तो मैं इस पोजीशन में नहीं था, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपनी क्लास में खड़ा होकर ना अच्छे से मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे पाऊँ। लेकिन मैंने प्रयास किए, और आप भी अगर प्रयास करेंगे तो मेरे से भी बेहतर स्थिति में हैं आप, तो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं आप। अगर एक टीचर के लिए वाइस चांसलर बनना या एक प्रोफेसर बनना एक सफलता है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप उससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है, मौजूदा लेवल है, मेरे लेवल से, जो मैं जिस वक्त एमए में था, हाँ पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट था मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जिस तरह से एक अच्छी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, उससे आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं। एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड बी ए प्राउड स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रोड्यूस किया है। आज इस यूनिवर्सिटी के पास आउट लॉ के एक ग्रेजुएट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। आज बहुत से हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं। आज सिविल सर्विसेज में सेक्रेटरी या फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक पे चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। इस यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, साइंटिस्ट, आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स। सो आई थिंक you can be one of them and you will be one of them. Thank you. Thanks a lot.